कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो जय सरदार, जय भीम। डरो मत, लड़ो। तो નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની કેટલી બધી ફાટી ગઈ જોયું તમે? ભાષણોમાં પણ બોલવું પડે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જોઈએ કે રાહુલ બાબા? राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? પટનાની અંદર વિપક્ષોની એકતા જોઈ ને, એનાથી આપણા નરેન્દ્ર મોદીના પેટમાં તેલ રેડાયું છે। અને એટલે તો બધા વિરોધ પક્ષના નેતાઓ અને તેમના પુત્ર પુત્રીઓના નામ પણ સાહેબે ભાષણોમાં બોલવા પડે છે। આમાં સૌથી વધુ ડર પ્રધાન સેવકને હોય ને તો લાલુ પ્રસાદ યાદવનો। પટનાની અંદર લાલુજીએ આપણા રાહુલ ગાંધીને વરરાજા બનવાની જે કોમેન્ટ કરીને ઇનડાયરેક્ટ કોમેન્ટ હતી। शादी करिए और हम लोग बनाते चले और शादी करिए, बात मानिए। मतलब કે અમે બધા તમારી જાતમાં જોડાવા તૈયાર છીએ। નેતૃત્વ માટે તૈયાર થઈ જાઓ રાહુલજી, વડાપ્રધાન બનવા તૈયાર થઈ જાઓ। મિત્રો, આવા લાલુ પ્રસાદ યાદવ વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ। ડરો મત, લડો। જેમની નસ નસની અંદર છે ને એવા લાલુ પ્રસાદ યાદવ। પણ હા મિત્રો, મોદી મીડિયા તમને આ નહીં બતાવે, એટલે આપણે આપણું મીડિયા ઊભું કરવું જ પડશે। અને એટલે જ વારંવાર અપીલ કરું છું કે અમને લડવાની હિંમત અને પ્રેરણા મળે ને, એટલે આપ અમારી સત્યાગ્રહ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને સહકાર આપો। મિત્રો, ચેનલની જાહેરાતમાંથી થોડીક આવક પણ થાય અને ગાડી પણ ચાલે। આપણે જાણીએ છીએ કે લાલુ પ્રસાદ યાદવને જેલમાં જવું પડ્યું ને તો પણ નરેન્દ્ર મોદીની શરણાગતિ ન સ્વીકારી અને સાહેબ સાથે હાથ ના મિલાવ્યા। મરદ માણસ કહેવાય। આ લાલુ પ્રસાદ યાદવને સાંભળવા ને એ પણ એક લાવો છે। મિત્રો, પાર્લામેન્ટની અંદર જ્યારે 1996 માં વડાપ્રધાન હતા અટલ બિહારી વાજપેયી, 13 દિવસની અંદર એમને એમના બિસ્તરા પોટલા બાંધવા પડ્યા હતા। આ વખતે લાલુ પ્રસાદ યાદવે જે ભાષણ આપ્યું અને અટલ બિહારી વાજપેયીને જે ચાબખા માર્યા ને એ ચાબખા સાંભળવા પડે એવા છે। જેમ નરેન્દ્રભાઈ મોદી અત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જે સ્ટેડિયમનું નામ હટાવીને રંગરૂપ કરીને રંગરોગાન કરીને એમની પોતાની શક્તિ લગાડી દીધી ને, એવું ભૂતકાળની અંદર વડાપ્રધાન વાજપેયીજી પણ કરી રહ્યા હતા। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नामनी जे योजनाओं थी ने ए योजनाओं ની અંદર થોડો ઘણો ફેરફાર કરીને યોજનાઓનું નામ પણ બદલી નાખતા હતા। હિન્દુ અને હિન્દુત્વના નામે ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યારે રાજનીતિ કરી રહી હતી। લાલુ પ્રસાદ યાદવે જબરજસ્ત ચાબખા માર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે મંત્રીઓ તો આવશે ને જશે, સરકાર તો આવશે ને પડી જશે, પણ દેશની એકતા અને અખંડતા હિન્દુત્વના નામે જોખમાશે ને તો આ દેશ હાથમાં નહીં રહે। 13 महीना आपको एक मौका था। आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते। जौहर साहब वहां बैठे हैं। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का। हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे। आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थे क्या आप जेल में? हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप लोग तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय, मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठे। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी,
हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोग के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है, जौहर साहब ही बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हम लोगों ने कहा था या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में। और देश के सेकुलर कैरेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए। चुनाव में गए, हमारी लड़ाई आपसे है। आपने कहा अब बताइए, हिंदू 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 हिंदुत्व 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 कौन विरोध करता? थे हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं। हमारी मां बहन गांव गए सारे लोग। ये ठेका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर कैरेक्टर, सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता। जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे? हमने एक कैलेंडर कर दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ। अब हम जो है सो कि पहले बोल देते थे। इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप डंडा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरण में। तो हम लोग भी अब साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा। इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए। अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं योग्य समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे बारे दीजिए। महोदय ये आपने कहा था। अब अपने हम लोगों ने
अब आप हम लोग को पाठ पढ़ाते हैं, अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो मंत्री, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए। आपने पहले भी ये काम किया है और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है। कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलत फहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना क्या जी, हाँ बोगस वोट पड़ी थी, उसका क्या हुआ? बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको बढ़िया से वोट पड़ेगा। મિત્રો વિડિયો પસંદ આવી જશે તો પછી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, વિડિયો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો, જેથી તમારા મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તે અમને પણ ખબર પડે। પટુ પટેલના વંદે अरे मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन